Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to part 4 of Basic Algebra chapter. Before we start today's part, last time हम क्या कर रहे थे? Last time what we did was we were dealing with expressions having fractions और उनको करने के लिए the easiest approach was to take LCM और हमने LCM लिया था और LCM लेने के बाद to deal with the fractions was very easy. And then we perform the arithmetic operations like plus and minus और फिर वो बहुत easily हमने वो सारी manipulation की थी. तो let's start today's part. So आज हमने जो बात करनी है वो है expansion of linear expressions. जब हम बात कर रहे हैं expansion of linear expression तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे some multiplication is going to be involved. तो वो multiplication कैसे होगी उसको हम देखेंगे. कभी तो कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, कभी कोई कांस्टेंट एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा. तो हम उसको देखते हैं कि वो कैसे करना है और उसको अगर उसमें सिंप्लीफिकेशन इन्वॉल्व होती है तो वो कैसे होती है. सो लेट्स स्टार्ट दैट. सो फर्स्ट एक वेरी सिंपल एग्जांपल. इफ वी हैव हियर 5 into 2x. नाउ 2x इज अ टर्म विच इज विद इन द parenthesis और बाहर हमारे पास एक कांस्टेंट है. अच्छा, अब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है? जैसे मैंने पहले बात की थी कि व्हेन देयर इज मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन सिंबल इज नॉट देयर. सो 5 और 2x के दरमियान में देयर इज नो सिंबल बट इट इज अज्यूम्ड दैट अ मल्टीप्लिकेशन इज देयर. सो हमने करना क्या है? 5 ने इस 2x के साथ बेसिकली मल्टीप्लाई होना है. सो जब मल्टीप्लाई करना है तो हमने कैसे करना है? इस कांस्टेंट को हमने x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना. सो 5 into 2 is 10 और the variable comes as it is. So it becomes 10x. Very simple. और ये this process is called expansion. Okay, let's take another example. If we have here 3 into minus 4x. Now, operation is सिमिलर टू दैट जो हमने पहले किया है. सिर्फ फर्क क्या पड़ा है? फर्क ये पड़ा है कि जो हमारे पास टर्म है विद इन द parenthesis अब उसमें साथ में नेगेटिव साइन माइनस साइन भी मौजूद है. लेकिन इस 3 का और इस टर्म में आपस में क्या रिलेशनशिप है? देयर इज नथिंग, नो सिंबल ओवर हियर. सो लेकिन इनका आपस में रिलेशनशिप मल्टीप्लाई का ही है. तो मल्टीप्लाई किसने होना है? 3 और -4. -4 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. तो वही मल्टीप्लाई होगा 3 से. तो -4 into 3 is -12 and the variable comes as it is. So -12x. This is the answer and this is the expansion of this term into a constant. Let's take another example. If we have like this, -7 into -3x. Now, the constant is have a minus sign, term has a minus sign, so अब क्या है? Still the operation is the same. There is a multiplication is there, -7 into -3. Now, when minus is multiplied with minus, it becomes plus. ठीक है? So minus into minus becomes plus. So when we multiply -7 with -3, it becomes a positive number. So -7 into -3 is positive 21 and a variable. Okay? So far it was very easy. So let's take another example which involves some expression as well. अभी तक तो हमने टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे थे. तो एक्सप्रेशन अगर आ रहा हो तो उसको हमने क्या करना है? If we have an example like this, 2 into 5 plus x. Now, ये तो कांस्टेंट ही है as before, but here this is not a term, this is an expression. अब अगर ये एक्सप्रेशन है तो इसमें इसके साथ कैसे मल्टीप्लाई होंगे? इसको मल्टीप्लाई करने के लिए
एक पहले एक लॉ की बात करूंगा. वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो फर्स्ट वी सी कि वो लॉ कैसे काम कर रहा है, एंड देन वी विल अप्लाई दैट लॉ ऑन दिस expression into constant to expand it. So the law is now when we have a situation like this, when we are multiplying a variable with an expression or a constant with an expression, so we apply a distributive law. So how to apply this? This variable or this constant is first multiplied with this, and then it is multiplied with this. So how we are going to do this? A into B, it becomes AB. Then A into C, it becomes AC, and the sign, the positive sign, will follow as it is. So it becomes AB plus AC. Okay, so A is first multiplied with B, and then A is multiplied with C. So what we have here, A into B is AB plus A into C is AC. This operation is called distributive law. So it means that this multiplication is done according to this distributive law. So in this our example, we have here a constant is multiplied with this expression. यहाँ पे हमारे पास हमने एक वेरिएबल लिया होता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है. लेकिन बात वही है कि इस 2 ने पहले 5 से मल्टीप्लाई होना है और फिर इस 2 ने इस x से मल्टीप्लाई होना है. तो चलिए वो करते हैं. So this will first multiply with this, and then it will multiply with this. So 2 into 5 is 10, and then 2 into x is 2x. So 2 into 5, 10, plus 2 into x is 2x. And we have applied distributive law to solve this multiplication, and this process is also called expansion. We have expanded this expression into a constant, and this expression is called expansion of linear expression. So let's take another example. If we have here minus 3 into x minus 1, so अब क्या करेंगे? बात वही है, -3 ने पहले मल्टीप्लाई होना है x के साथ. -3 into x, हमारे पास क्या आएगा? -3x. अब -3 ने मल्टीप्लाई होना है -1 के साथ. सो क्या होगा? माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस. यह हमारे पास साइन आएगा प्लस, और 3 into 1 3 आ गया. माइनस इंटू माइनस जब भी होगा वो हमेशा रिजल्ट करेगा प्लस में. सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, लेकिन हमने करना क्या था? -3 इंटू -1. तो व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आया? +3. ओके, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. इफ वी हैव हियर like 5 into 2x minus 3y. अब एक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए, तो कोई मसला नहीं है, ऑपरेशन वैसे ही रहेगा. क्या होगा? 5 into 2x पहले होगा और फिर 5 into 3y होगा. अब क्या करना है हमें? 5 into 2x 10x माइनस, क्योंकि अब ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस माइनस ही रहेगा. तो -5 into -3 15y. ओके, अभी थोड़ा सा लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स से कि हमारे पास ये सिचुएशन है, 2 into 3x minus 1
प्लस 5 इंटू माइनस 10y। सो अब क्या करना है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है मल्टीप्लायर है कांस्टेंट के साथ, ये टर्म है मल्टीप्लायर कांस्टेंट, और इसको हमने करना क्या है, वी हैव टू एक्सपैंड दिस एक्सप्रेशन टू, और इसको एक्सपैंड करने के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए यहां पे हमने क्या अप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करना है, और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, पहले 2 इंटू 3x विच इज 6x, फिर 2 इंटू -1 इट इज -2, एंड देन प्लस 5 इंटू -10, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -10y, अच्छा सॉरी 50y, बैग यू पार्टन, सो -50y। अब इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, 6x -50y -2। जब आप इस तरह के कर रहे होते हैं तो वेरिएबल वाली टर्म्स पहले लिखी जाएंगी और कांस्टेंट्स बाद में लिखे जाते हैं, और ये एक तरीका है, और ये सॉल्व हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, example is like this, -7 into x plus 1 and plus 3 into 1 minus 2y। ओके, सो अब इसमें क्या हो रहा है, -7 ने इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होना है, 3 ने इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, -7 into x -7x, -7 into 1 -1, plus 3 into 1 plus 3, plus 3 into -2y is -6y। ओके, सो अब इसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज किया तो क्या बनेगा, -7x -6y। अब ये जो देखिए, ये दो कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट जब ग्रुप हो रहे हैं, ये दोनों मैंने क्या कहा था, लाइक टर्म्स ग्रुप होती है, पहले बात की हुई है। यहाँ पे दो कांस्टेंट है, ये -7 है, ये 3 है, तो इनका हम इसको रिजॉल्व करेंगे, तो -7 और +3 क्या हो जाएगा, हमारे पास आएगा -4। तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो था ये एक्सपैंड हो गया, इस पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया और इट इज डन। ठीक है जी, सो इट्स इजी, कोई मसला नहीं है। लीनियर एक्सप्रेशंस को अगर आपने एक्सपैंड करना है, कभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, अगर टर्म्स है सिर्फ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस का ख्याल रखना है, और इट्स वेरी इजी। सो थैंक यू वेरी मच।